record the session before. Okay. So first of all, maybe you have seen or maybe you have come across to this link or about this workshop from Finshala or maybe from some LinkedIn post. So Finshala is all about creating awareness about personal finance, and here also we are means somewhere guiding student for their better career opportunities. So this is one of that initiative where we will be. I will try to do every week a small. Okay, there are some more people who are just joining in. So we will try to do this year. I will not promise, but I will try to do a session on career development every Sunday. So first, can you all tell, are you able to see the screen? Or you can even type it down here in the chat. Sahil, I will tell you later. So it is from FOC BHU. So is the screen is present to all of you? Are you able to watch it? Yes, sir. Okay. Okay, then we will start. So as you know, this workshop is for the LinkedIn. So how many of you are currently using LinkedIn? So I will be switching this presentation and this thing in between so that I get to know about how many people are there. Okay, so Khushi is here, Khushbu is here. Those who are using LinkedIn. Okay, so there are a lot of people who are acquainted with what is LinkedIn and how we should use it. So today we will. So next thing is why LinkedIn is so important. So what is the purpose? Okay, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्यों जो है आज की वर्कशॉप में आए हो. What is your purpose? LinkedIn क्यों सीखना है? Why LinkedIn क्यों जरूरी है? Why? So to grow more and get more job opportunities and do better. Okay. So is it only about the job opportunities or there is something else more Uh, than that? Socializing with many other people's experienced people. So, okay, mostly I think you all are student and job सबका रहता ही job is the first priority. But apart from that, there are a lot of things which LinkedIn provides us. Like you can build a network there. You can connect with your alumni network. You can connect with the professionals who are at a higher position in some organization. CEO है, CFOs है, उनके साथ आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो. ये अपॉर्चुनिटीज आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी लिंक्डइन के अलावा. Naukri.com इन सबसे डिफरेंट क्या है लिंक्डइन? यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो. आप किसी को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी का कोलैबोरेशन कर सकते हो. तो ये चीज आपको और किसी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी जो आपको लिंक्डइन के अंदर मिलती है. तो देयर आर वेरियस थिंग्स. जैसे नेटवर्क बिल्डिंग मैंने बताया आपको कि आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो विद योर सीनियर्स, विद योर कलीग्स. अपने क्लासमेट्स हो सकते हैं, बैचमेट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, उनसे आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो. सेकंड थिंग, यू कैन बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड. इफ आप लोगों ने अगर देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर which are using LinkedIn for their personal branding. Suppose if you want to make your career in finance, तो आप फाइनेंस के अराउंड अपना कंटेंट है उसको शेयर कर सकते हो. तो वहां से क्या होगा कि आपकी एक पर्सनल इमेज बनेगी और वो आपको हेल्प करेगी आपके करियर ग्रोथ के अंदर. एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ रिक्रूटर्स आर देयर. बहुत सारे रिक्रूटर्स रहते हैं जो लिंक्डइन के थ्रू, जैसे सब पर्सनली हम लोग भी हैं, अगर इंटर्न हायर कर रहे हैं देन आई विल गो एंड सी कि लिंक्डइन पे पर्सन है या नहीं. सिंपल किसी से रिज्यूमे मांगोगे तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा. बट एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ पर्सन हु इज एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड ही इज शेयरिंग सम फाइनेंशियल कंटेंट, देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू गेट हिम विद मी देन अ पर्सन हु इज जस्ट सेंडिंग मी अ सीवी. तो ये बेनिफिट एक एज आपको देता है लिंक्डइन. And next thing is marketing. So there are ultimately the revenue किसी भी companies के पास कहाँ से आता है? Ultimate revenue कहाँ से आता है? When you sell a product. And if you want to sell a product, then you have to market it. है ना? किसी भी चीज को अगर आपको बेचना है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि इसमें ये चीज है. Why you should buy it? That thing come with marketing. तो marketing के लिए भी आप LinkedIn का use करते हो. And next thing is, if you want to go for the job, then why? What is the basic difference between resume and LinkedIn? Those who are already using LinkedIn,
they can tell क्या डिफरेंस है, why, what is the difference between LinkedIn and a CV, and कौन ज़्यादा पावरफुल है. Anyone can guess who is using LinkedIn already? Why? What is the difference between LinkedIn and a simple CV? Okay, Khushi is saying LinkedIn is powerful, but why? So LinkedIn provide you a lot of opportunities. Okay, I will just make it a little bigger. तो LinkedIn पे क्या है, सिंपली आपका एक सोशल बिहेवियर भी आपका पता चलता है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग थिंग, वेर एज रिज्यूमे इज अ वेरी फॉर्मल, है ना. ऑन LinkedIn you can share your videos और फोटोज, बट ऑन रिज्यूमे यू कैन ओनली शेयर योर फोटोज, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है इफ यू आर शेयरिंग दैट. ऑन LinkedIn you can share your results, like कि हमने इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया, like if I'm saying about Finshala, we can say we have collected this much revenue this year, whereas on resume you can't explain it in a very detailed manner. On resume you can't post your testimonials कि I have done this much internship in some company and this is my testimonial from their CEO or from the HR or somewhere else. But on LinkedIn, a person can see these testimonial, your testimonial, he can see your testimonial. तो जहाँ तक आपको पता है कि रिज्यूमे वी ऑलरेडी, अगर हम सेल्स की प्रोफाइल के जा रहे हैं, वी विल कस्टमाइज अवर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट. अगर हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, देन वी विल चेंज अवर जो सीवी भी होता है या रिज्यूम होता है उसको हम चेंज करते हैं सेल प्रोफाइल के हिसाब से. बट ऑन लिंक्डइन इट इज़ वेरी स्टैटिक. जो आप हो वो आपको मतलब जो भी हायर कर रहा है ही विल सी कि हु यू आर. So this is a basic difference, and that's why the LinkedIn is more powerful than just sending your CV. And I would suggest you कि whenever you are making your CV, do mention your LinkedIn account. वो मैं आपको बताऊंगा बाद में किस तरीके से आपको कस्टमाइज कर सकते हो. बट इस चीज़ को रखो कि whenever you are making CV, try to mention your LinkedIn account also. Because बहुत सारे लोग होते हैं जो are very interested to know about you. आप लोगों को ऐसा पता नहीं होगा कि HRs जो होते हैं ना, अगर आपका रिज्यूमे में उनको कुछ अच्छा लगता है, देन दे डू देयर ओन रिसर्च अबाउट यू कि इस पर्सन को लेना नहीं लेना बिफोर इवन इंटरव्यू. सो इट्स, आई वुड से मस्ट, अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट मेंशनिंग इट, देन यू कैन से कि इट्स नॉट दैट वर्थ इट. ओके, सो व्हाट इज द थिंग दैट वुड लैंड यू ऑन अ जॉब? कहाँ से आपको जॉब मिलती है? व्हाट इज योर व्यू? मतलब Skills. skills is there, okay. Anything else? Only skill? Skills, powerful resume, and requirement of the job Okay, that you fulfill. okay. Khushi is saying experience. Khushbu is saying experience. No, in my opinion, Yeah. skills and better communication skills. Okay, communication skills is also a part of skill. That's a soft skill. बिल्कुल. So one thing which you have, I already have mentioned, but okay, we will again mention it. So your network. You may have heard this quote, your network is your net worth. आप कितने सारे लोगों को जानते हो? यहाँ पे मुझे एक स्मॉल सा याद आ रहा है कि जो महाभारत का जो था कि वाई, जो पांडव, अगर आप लोगों ने सुना होगा, पांडव लोग क्यों जीते, वाई दे विन द बैटल अगेंस्ट कौरव, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. अगर आप पांडवों की, अगर आप पढ़ोगे महाभारत तो आपको चलेगा पता कि पांडवों का जो नेटवर्क था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. दे हैव अ लिंक विद दियर, जो द्रौपदी के पिताजी द्रौपद थे उनसे था, कृष्ण के साथ था, है ना. इस तरीके से हैव अ वेरी गुड नेटवर्क. तो अल्टीमेटली इन योर जॉब आल्सो दैट थिंग रियली मैटर कि आप कितने लोगों को जानते हो और नेटवर्क. सो लिंक्डइन इज वेरी ब्यूटीफुल टूल टू बिल्ड योर नेटवर्क. एंड सेकंड थिंग इज रेफरेंसेस, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया कि रेफरेंसेस इज द समथिंग. आप रिज्यूमे में अभी अपने रेफरेंसेस को कभी पुट नहीं कर सकते हो. पास्ट एक्सपीरियंस आप कभी शेयर नहीं कर सकते कि उस कंपनीज के साथ मेरा कैसा था, मतलब व्हाट वर्क यू हैव डन देयर, दैट यू कांट प्रेजेंट इन योर रिज्यूमे.
तो वो एक चीज़ है जो आपको लिंक्डइन के अंदर मिलता है कि लिंक्डइन में ऑप्शन मिलता है कि यू कैन पुट इन देयर, एंड रिज्यूमे तो सिंपली रहता ही है आपका लिंक्डइन के साथ अटैच. So these are the things which are there in LinkedIn. And next thing is there, you have LinkedIn account, and if you are not able to use it in a optimal way, then it is a useless. है ना, आपके पास कोई भी टूल है और आपको उसको यूज करना नहीं आ रहा है, हाउ टू यूज इट, then it is ultimately किसी काम का नहीं है. तो today we will be learning that how to use LinkedIn for our growth. तो यहाँ पे जो मेन रहता है कि टारगेट ऑडियंस, सपोज आई एम अ पर्सन फ्रॉम फाइनेंस, एंड अगर मैं किसी इन्वायरमेंट वाले पर्सन के पास जा रहा हूँ, उससे नेटवर्क बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मे बी वो कहीं पे 1% 2% मुझको एज दे, बट वहीं पे अगर मैं किसी फाइनेंस के पर्सन के साथ नेटवर्किंग कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी देन नेटवर्किंग विद अ पर्सन हु इज फ्रॉम इन्वायरमेंट बैकग्राउंड. तो टारगेटिंग योर ऑडियंस और योर निश, जो हम बाद में अभी आगे बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. उस चीज़ को पर्टिकुलर टारगेट करना काफ़ी जरूरी है. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लिंक्डइन के अंदर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. आपके प्रोफाइल पे अगर कोई आ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि दिस पर्सन इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द हायरिंग. ऐसा आपको प्रोफाइल होना चाहिए. सेकेंड थिंग, यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, कि आप लिंक्डइन पे क्या करने आए हो. आर यू देयर फॉर द मेकिंग अ पर्सनल ब्रांडिंग, या फिर आप जॉब फाइंड करने के लिए आए हो, या फिर आप प्रोफेशनल बिल्डिंग जो नेटवर्क्स है उनको बिल्डअप करने आए हो. वो आपको क्लियरली मेंशन रहना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन सेंड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट. उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि कैसे आप एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो टू अ टारगेटेड पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो जिस पे बात करेंगे वो है ऑप्टिमाइज आवर प्रोफाइल. तो आप सब लोग आई थिंक यू वुड बी रेडी विद योर लिंक्डइन अकाउंट. तो इसको हम लास्ट में देखते हैं. तो साथ साथ में यहाँ पे जो डायरेक्टली जो अपना लिंक्डइन है वो भी खोल देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडियाज मिले. ओके, दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट. और आप लोग भी अपना खोल दीजिए साइड बाय साइड, मतलब आप लोगों को भी चलता रहे पता कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लैगिंग फॉर यू, कहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो लैग कर रहा है. सो दिस सेक्शन जहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी वहां पे आपको, so this section, first of all, how many of you don't have that? I can't check that thing here. किसी ने send किया है अभी currently. Siles, sorry Sahil, I can't share that thing here. Okay. तो आप लोगों ने अपना LinkedIn अकाउंट खोल लिया है. तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कितने लोगों की प्रोफाइल पिक्चर नहीं है. So here we are almost 20 people over here. I just want to know कितने लोग हैं जिनकी अभी तक प्रोफाइल पिक्चर नहीं है. ओके, सभी की आई थिंक. दैट्स गुड. क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर इज द फर्स्ट थिंग, और यू कैन से द फर्स्ट इंप्रेशन विच अ पर्सन गेट व्हेन ही लैंडेड ऑन योर प्रोफाइल. ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर अगर आपकी नहीं है तो कोशिश करें एक फॉर्मल प्रोफेशनल फोटो रखें. सिंपली अगर आप आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आपने कुछ ऐसी फोटो डाली है, सेल्फी डाली हुई है, सिंपली कहीं पे घूमने गए हो वो डाला हुआ है, या फिर फैमिली के साथ फोटो डाली है, सो दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल. इट इज नॉट इंस्टाग्राम. इस चीज को समझो. इट इज फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ इज एन एड ऑन. इट्स नॉट कि यहाँ से पर्सनल ग्रोथ मेन मोटिव नहीं है, इट्स अ सेकेंडरी. तो हमेशा ट्राई टू पुट अ प्रोफेशनल फोटो. और यू कैन से किसकी प्रोफेशनल फोटो नहीं है अभी तक यहाँ पे जितना मैंने भी डाली है लिंक्डइन पे. बहुत सारे लोग शर्मा भी रहे होंगे कि मेरी नहीं है. ओके, श्रुति सिंह, सो उनकी प्रोफेशनल फोटो नहीं है. सो टुडे वी विल मेक श्योर कि हम लोग एक प्रोफेशनल फोटो अगर नहीं है तो उसको खिंचवाओ आप एंड देन पुट इट. और इवन वी विल आल्सो डू अ स्मॉल थिंग कि कैसे आप एक प्रोफेशनल फोटो बना सकते हो, सिंपल फोटो को भी. एंड सेकंड थिंग इज बैकग्राउंड. आप लोगों ने यहाँ पे देखोगे लिंक्डइन पे, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन रहता है बैकग्राउंड. जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक फोटो है और यहाँ पे ये बैकग्राउंड है. दिस इज बैकग्राउंड. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव पुट योर बैकग्राउंड. बहुत सारे लोगों ने अपना बैकग्राउंड नहीं पुट किया होगा. सो हाउ मेनी आर देयर हु हैज पुट बैकग्राउंड. इस बार नई वाला नहीं पूछेंगे. कितने लोग हैं जिन्होंने अपना उसमें बैकग्राउंड डाला हुआ है. ओके, आशुतोष ने पुट किया हुआ है.
बाकी लोगों ने जनरेटेड इज कॉल्ड बैनर, बैकग्राउंड बैनर। चिन्मय ने भी डाला, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, चयन है ना, चयन, ओके। तो बैकग्राउंड, अगर आप प्रोफाइल खोल रहे हो, प्रोफाइल खोल रहे हो सिंपली, अगर आपको मैं यहीं पे स्लाइड में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, जूम इन करें यहाँ पे, तो आपको दिखेगा एक प्रोफाइल ही है कि सेल मार्केटिंग प्लस स्ट्रेटेजी समथिंग समथिंग दिस, एंड यहाँ पे एक सिंपल बैकग्राउंड है जिसमें ना फोटो है ना पीछे बैकग्राउंड है। तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? जस्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे? आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल को जो है, जो सेल्स मार्केटिंग प्लस स्ट्रेटेजी है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, वो ज़्यादा जेन्यून लग रहा होगा, बजाय कि पर्सन जिसका अकाउंट है जिसमें फोटो भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जॉब लेने से पहले क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलप करनी पड़ती है, मतलब एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। एक पर्सन है जिसकी फोटो नहीं है, मतलब ही इज़ वेरी शाई, ही इज़ नॉट दैट ओपन, तो वो जॉब क्या करेगा? द सेम थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू ऑल दैट, कि टर्न ऑन योर कैमरा। क्यों? बिकॉज अगर आप अपना कैमरा खोलने के लिए शाई हो, देन हाउ कैन आई से कि दिस पर्सन इज गुड इनफ टू होल्ड अ सम पोजिशन? कैसे ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कहीं पे, जब ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा एक सिंपल वर्कशॉप के अंदर? सो दीज आर द टू थिंग्स, फर्स्ट इज प्रोफाइल, सेकेंड थिंग इज बैकग्राउंड। तो इन चीजों के लिए आप ना कुछ टूल्स है जिनको यूज कर सकते हो। फर्स्ट आप लोगों को बताऊंगा, कैनवा में आप डिजाइन कर सकते हो सिंपल। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो, तो कैनवा एक अच्छी खासी वेबसाइट है जहां पे आप अपना एक प्रोफाइल फोटो है उसको डिजाइन कर सकते हो। सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग होंगे, आपके पास एक फोटो है सपोज, और उसमें बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एंड इफ यू वांट टू रिमूव बैकग्राउंड, सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड remove.bg, जिसमें जाके आप अपनी एक फोटो को सिंपली, जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हो। इन दोनों मैं आपको सिंपली बता देता हूँ यहाँ पे। इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम लैपटॉप, यू कैन डू इट नाउ आल्सो, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे कोई भी फोटो है उसको अपलोड कर लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कोई भी एक फोटो, आई विल जस्ट चेक। सपोज जैसे ये वाली फोटो, इसी के अंदर देखते हैं कि इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना काम करता है। सिंपली अगर मैं ये वाली फोटो भी डाल देता हूँ, तो सो आपको सिंपली ड्रॉप करना है उसको, एंड यू विल सी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट हट गया होगा। तो ये अभी कर रहा है काम, एंड यू कैन सी कि काफी अच्छा काम किया उसने, पीछे का पूरा बैकग्राउंड हटा दिया। एंड नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फोटो एंड पुट इट, आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे बैकग्राउंड हटा तो दिया, बट पीछे का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इज इट गुड और नॉट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? If there is any doubt, then you can raise your hand. So this is the website. I will just paste over here. जिसको आप यूज कर सकते हो। remove.bg. So with this website you can remove the background, and एक अच्छी फोटो आपकी आ जाएगी। And after that website.pfp maker, तो यहाँ पे क्या आप कोई एक नया बैकग्राउंड ऐड ऑन कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो मैंने भी सेम pfp डॉट मेकर से ही यूज किया हुआ है बैकग्राउंड है। तो आप लोगों के सामने मैं स्टेप कर रहा हूँ कि इसको मैं सिंपली डाउनलोड कर रहा हूँ, एंड इसको फिर हम अपलोड करेंगे pfp डॉट मेकर पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर आइडिया आ जाए, एंड एटलीस्ट कुछ और हो ना हो, आपका प्रोफाइल की जो फोटो है वो तो कम से कम एक अच्छी बने, अट्रैक्टिव बने। तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं हम इसको, फोटो को। इस फोटो को हमने अपलोड कर दिया, एंड देन यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपकी फोटो मतलब जो एक बहुत ही उतनी अच्छी नहीं होगी, बट उसको ये काफी अच्छा बेहतर बना देगा।
थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज होती है। आपकी फोटो के पीछे बैकग्राउंड मतलब एक अच्छी खासी एल्गोरिथम रन करती है, तो थोड़ा टाइम लगाता है जनरली ये। और आपको मैं इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ लोग होंगे जो भी लैपटॉप के साथ नहीं बैठे होंगे, सो दैट दे कैन यूज इट लेटर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको हम थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो हो जाएगा, वो चीज़ आप बाद में देख सकते हो कि इसको ऐसे एडजस्ट करके जूम इन जूम आउट वो सब चीज़, मतलब यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस। बेसिक चीज़ है, यहाँ पे स्केल करोगे तो आपका फोटो बड़ा हो जाएगा और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, मतलब ये है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन पुट इट देयर। सो दिस इज अ फर्स्ट थिंग कि जो आपकी फोटो है वो कैसे अपडेट रहे। सेकंड थिंग इज बैकग्राउंड, मैंने बताया आप लोगों को, तो बैकग्राउंड के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा में सिंपली जाओगे तो वहाँ पे आप लिखोगे canva.com, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा। इसका भी लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये 3 वेबसाइट्स हैं। तो कैनवा में यहाँ पे जैसे खुलेगा तो वहाँ पे अगर आप सिंपली लिखोगे लिंक्ड इन बैनर, तो वो एक प्रॉपर जो स्केल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्केल ये इट्स अ रेक्टेंगल, तो उस शेप का आपको जो है वो लेना पड़ेगा एक साइज एंड देन यू कैन ड्रॉ। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, साथ साथ आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग विच कम इज, हम लोगों ने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया, फर्स्ट इंप्रेशन जमा लिया, ठीक है। सेकंड थिंग बैकग्राउंड लगा लिया ताकि थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया पता लगे हमारे बारे में। तो व्हाट वी शुड मेंशन इन द बैकग्राउंड, क्या चीज मेंशन करनी चाहिए? कैन एनीवन गेस क्या चीजें जिनको हमें अपने बैकग्राउंड में मेंशन करनी चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स? About yourself. Sorry, I was not able to hear that. About yourself. Okay, okay, that's good. Okay, Ashutosh has raised the hand. Okay, Ashutosh, tell. Yeah, it must somehow related to you. As if you are an entrepreneur, then there must be a poster relating to your startup. And if you are not an entrepreneur, in that case, the poster must be related to your expertise. Okay. As in my case, I have shown a graph of the projection and estimation graph of a company, as my expertise is data analytics. Okay. So it can be somehow related to your expertise. Okay. Okay. Nice. 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 So, in your banner, you should mention what you can offer. If you are a startup, then you should mention what I can offer. Suppose आप लोगों को मैं अपना एग्जाम्पल दिखा था, फिनशाला के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो here you can see, you can follow me for the content on investment advice, insurance advice, career in finance, personal finance, trading. और if you are a student and you want a job, then you should mention कि आपको क्यों हायर करना चाहिए, उस चीज को आप मेंशन कर सकते हो। सपोज अगर मैं जैसे सपोज इफ आई एम सिटिंग इन अ प्लेसमेंट, देन आई कैन मेंशन कि यू कैन हायर मी फॉर दिस आई हैव दिस स्किल। तो आप क्या ऑफर कर सकते हो, उस चीज को आपको मेंशन करना चाहिए इन योर बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आप देखो फोटो से तो आपका ओके ठीक है, पता चलता है कि ही इज अ जेन्युइन पर्सन, वी कैन ट्रस्ट। सेकेंड थिंग, जो आपका बैकग्राउंड है वो आपको शो करना चाहिए कि आप क्या हो, व्हाट यू कैन ऑफर, उस चीज को। Okay, so two things which we have already discussed is profile photo and background banner. Next thing is, तो एक स्मॉल कैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो दूसरों के प्रोफाइल के अंदर कि जो फोटोज है कोशिश करो कि वो एक अच्छी खासी, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत दूर से आपने फोटो ली है, इट शुड बी गेट नोटिस्ड। तो फोटो का मेन जो मोटिव है, इट्स टू मेक फैमिलियर, आपसे लोग एक्वेंट हो। सेकेंड थिंग इज बिल्ड अ ट्रस्ट। अगर एक वेक फोटो है तो उतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है ना। अगर आपकी अच्छी फोटो है देन इट बिल्ड अ गुड ट्रस्ट। देन फॉर
this background you can check on different people, or maybe you can see the, जैसे फाइनेंस के अंदर अगर हम देखें तो जो सपोज कि जो ये है गोल्डमैन सैक का जो सीईओ है उसका प्रोफाइल कैसा है, what he has put in his background, accordingly we can just observe and then use. तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि फोटोशूट it is very really a good investment to put up, मतलब जो अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप टाइम का लगा रहे हो फोटो के ऊपर, प्रोफाइल फोटो के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, इट विल रियली पे यू. तो इस चीज के ऊपर थोड़ा टाइम लगाओ. जनरली हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं. सो इट्स नॉट इंस्टाग्राम और समथिंग, एंड इट्स अ प्रोफेशनल. नेक्स्ट थिंग इज यू मे हैव सीन दिस अबाउट ऑप्शन. अगर आप यहाँ, आप लोगों को यहाँ दिखा तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अबाउट ऑप्शन लिंक्डइन में. नीचे अबाउट ऑप्शन. तो इसके अंदर व्हाट वी शुड मेंशन, जस्ट गेस क्या हमें मेंशन करना चाहिए अबाउट अस, हाउ इट शुड बी, एंड यू कैन चेक ऑन योर कि आप लोगों ने अभी तक कैसा लिखा हुआ है. ठीक है, कुछ चीजें इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. सेम थिंग जो हमने बैनर में की थी, सेम उस चीज को ही हम हाईलाइट करेंगे इन एन एलोबरेट मैनर. कि जैसे आपने सपोज वहां पे हमने लिखा हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, तो हियर वी कैन मेंशन कि इंश्योरेंस के अंदर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव, व्हिच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स वी हैव, है ना. पर्सनल इंश्योरेंस है, या फिर आपका कार इंश्योरेंस है, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है. कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस विच वी आर प्रोवाइडिंग उस चीज के ऊपर. एंड इट इज ऑलवेज अ गुड वे टू एक्सप्लेन योर सेल्फ विद अ स्टोरी. एक स्मॉल सी स्टोरी, स्मॉल सा केस अगर आप डालते हो तो वो एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप करता है. तो इस तरीके से आप स्मॉल स्टोरी लिख सकते हो कि कैसे आपने हेल्प किया है किसी को भी. इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, देन हाउ यू हैव हेल्प योर क्लाइंट्स. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर सीकिंग अ जॉब, देन हाउ यू हैव, मतलब आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इन योर इंटर्नशिप, इन योर लाइव प्रोजेक्ट, जो भी आपने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं. सपोज यू हैव सम सर्टिफिकेशन, तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव लर्न, और उस चीज से क्या रियली बेनिफिट हुआ है, दैट यू कैन मेंशन इन योर अबाउट. एंड आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल. जैसे सपोज यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग सिंपली लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, बुलेट पॉइंट्स नहीं. अबाउट अस में यू हैव ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स. तो उस पूरे स्पेस का यूज करना है. सपोज अगर कोई एचआर है और वो आपके पेज तक आया है, और अगर वो आपका अबाउट अस खोल रहा है, दैट मीन्स ही इज रियली इंटरेस्टेड इन यू. और आपने वहां पे अगर 3 लाइन लिख के छोड़ा हुआ है तो उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना. इफ समवन इज पुटिंग दैट मच एफर्ट, तो उसके पास मतलब मे बी 100 में से केवल 3 आएंगे, बट दैट वुड बी जेन्यून. तो इसलिए अबाउट अस का जो प्रॉपर स्पेस है उसको यूज करो एंड पुट योर कंटेंट देयर. सिंपली जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बुलेट पॉइंट, वो नहीं, मेक इट इन अ डिटेल. इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन विच टाइप ऑफ इंजीनियर यू आर, फुल स्टैक, बैक एंड, कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर से आपने यूज किए हुए हैं, रिएक्ट यूज किया हुआ है, एक्सप्रेस यूज किया हुआ है. कोडिंग कर रहे हो तो आप जावा में कर रहे हो, या स्केल में कर रहे हो, या पाइथन में कर रहे हो. मेक इट इन अ डिटेल. बहुत सारे लोग सिंपली यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये स्किल का लिखा हुआ है JS रिएक्ट है. नहीं, यू हैव टू मेंशन कि आपने क्या चेंज लाया है. क्योंकि एज एन HR मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हें ये स्किल आती है. इट्स नेवर इंपॉर्टेंट. कभी भी तुम्हारा मतलब मेरे लिए एज एन HR ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तुम्हें कौन कौन सी स्किल्स आती है, मैं क्या करूँ उससे. तुमने उसी स्किल से करा क्या है. स्किल्स आर टूल. उन स्किल्स से आपने क्या किया है. इफ आई विल से अबाउट द फाइनेंस, सपोज यू हैव डन फाइनेंशियल मॉडलिंग. ओके, तुमने लिख दिया सिंपली कि आई नो फाइनेंशियल मॉडलिंग, बट मेरे को उससे कोई मतलब नहीं. मेरे को मतलब कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद आपने कितनी कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए हैं, दैट शोज. तो उस चीज को आपको मेंशन करना है. तो प्रॉपर यूज है उसका यूज करो, ठीक है, ताकि पर्सन शुड बी इम्प्रेस्ड बाय योर वट एवर ऑफरिंग्स यू हैव. एंड आप लोगों ने फिर देखा होगा हेडलाइंस यहाँ पे रहती हैं. आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे होंगे टॉप में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, मेंटर, जो भी चीजें हैं. तो उसका प्रॉपर यूज करना. यहाँ पे आपको स्पेस कम मिलता है, 50 वर्ड्स के अराउंड मिलता है, बट आपको वो क्रक्स देना है. क्योंकि जब भी आप सपोज, मैं अगर सिंपली यहाँ पर लिंक्डइन भी खोलता हूँ किसी का, ओके, जैसे किसी एक ने सेंड किया था ना, तो उसी को देख लेते हैं. साहिल ने सेंड किया था, तो वी कैन इवन एनालाइज कि
what are the good things and what are the things that should be improved. Okay, Sahil Gupta, University of Allahabad, finance enthusiastic. It's a very plain simple thing, है ना? यहीं पे you can even mention कि आपने कहाँ पे internship की है, ओके, और उसके अंदर आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. अब फोटोज में बैकग्राउंड आपने अपनी क्लासमेट्स की फोटो डाली है, तो ये किसी के लिए रिलेवेंट नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं. मतलब मे बी आपके बैचमेट्स को मतलब हो, बट एज अ रिक्रूटर उसको कोई मतलब नहीं आपके बैकग्राउंड में क्या है, मतलब फोटो में कौन कौन है. तो सिंपल, ठीक है. एमबीए आप कर रहे हो, यू कैन इवन मेंशन वेरी स्मॉल कि परसुइंग एमबीए समथिंग लाइक दिस, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन सम XYZ, जो भी डोमेन है आपका जहाँ पे आप करना चाह रहे हो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो. एंड देन यू कैन मेंशन योर स्किल. और इफ एक कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ रहती है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, एवरीवन शुड ट्राई ऑन दैट, वो हम बाद में बात करेंगे. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हेडिंग भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज हेडिंग, क्योंकि जब भी आप किसी का प्रोफाइल खोलते हो तो आप हेडिंग दिखती है उसकी. जैसे अगर किसी ने कोई कमेंट भी किया हो, सपोज लेट मी सी कि कहीं पे किसी ने कुछ कमेंट किया था, तो कमेंट के अंदर आपका केवल स्टार्टिंग में फोटो आती है, साथ साथ आपका जो वो है हेडिंग है, केवल हेडिंग दिखती है आपको. अगर सपोज जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सपोज जैसे यहीं पे मैं अगर देखता हूँ, जैसे कल एक वीडियो डाली थी कि नीचे सपोज जिन्होंने कमेंट किया होगा, और अगर मैं ऐसे कुछ जा रहा हूँ देख रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अंशु शर्मा, स्टूडेंट ऑफ MSc टेक जियो फिजिक्स एट BHU. वहीं पे खुशी कुमारी, आई थिंक सी हैज ज्वाइन. तो उनका क्या दिख रहा है? हेड ऑफ फाइनेंस, ठीक है, गर्ल्स ऑफ BHU. तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? ऑब्वियसली खुशी का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन. सिंपली अगर आप पुट अप कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट यूजिंग दैट स्पेस. तो हेडिंग इज द नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को यूज करना चाहिए. और जैसे मैंने बताया, इसमें वर्ड्स लिमिट कम रहती है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट. व्हाट एग्जैक्टली यू डू फॉर द पीपल. मैंने बोला ना, किसी को कोई मतलब नहीं कि आप खुद के लिए करते हो. व्हेन यू आर इन जॉब, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन ऑफर. आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. व्हाट इज, आप क्या कर सकते हो, प्लस यू शुड गिव अ सोशल प्रूफ ऑफ इट. मतलब सोशल प्रूफ मतलब उसका एक प्रूफ, टेस्टिमोनियल है तो वो, अगर टेस्टिमोनियल नहीं है, कहीं पे आपका कुछ सर्टिफिकेशन मिला है या फिर कुछ अवार्ड मिला है, उस चीज़ को. एंड थर्ड थिंग इज कॉल टू एक्शन. कोई अगर इंटरेस्टेड है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई विल मेक यू अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, फिर उन्होंने डैश डैश फॉक्स 40 अंडर 40. ये क्या है? इनका सोशल प्रूफ है. एंड थर्ड थिंग इज, अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे, देन यू कैन सेंड मी अ इन्फ्लुएंसर DM. तो इस तरीके से आपको अपने हेडिंग बनानी है, ओके. इफ यू वांट टू गेट अ लीड, ये जो लीड वाला है ये किन के लिए? इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, देन यू शुड यूज दिस. योर जॉब टाइटल, कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर निश, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, एंड रिजल्ट, आपने क्या किया हुआ है. सपोज जैसे यहाँ पे मार्केटिंग का लिखा हुआ है, VP ऑफ मार्केटिंग प्लस ग्रोथ मार्केटिंग लीडर प्लस स्केल्ड प्रोडक्ट टू 1 मिलियन प्लस यूजर्स. एक साल के अंदर इन्होंने 1 मिलियन प्लस यूजर्स को अपना जो प्रोडक्ट है वो स्केल किया है. तो ये क्या है? सोशल प्रूफ है, या फिर यू कैन से रिजल्ट है. तो इस तरीके से आपको जॉब के लिए अपना जो है प्रोफाइल बिल्डअप करना है. इस तरीके से आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है. थर्ड इज द सेक्शन, आई थिंक शायद किसी ने यहाँ पे यूज किया होगा आप में से. एनीवन ऑफ यू हर्ड दिस फीचर सेक्शन? फीचर सेक्शन यूज किया है किसी ने लिंक्डइन के अंदर? Okay, I will show you. So here you LinkedIn give you a section which is called feature, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जिनको आप डाल सकते हो. You can add on your post. कोई आर्टिकल है वो आप डाल सकते हो, कोई वेबसाइट है आपकी, लिंक है उसको आप डाल सकते हो, कोई मीडिया है उसको आप डाल सकते हो. तो ओके, आई विल जस्ट आस्क सिंपली, कितने लोगों ने यूज किया है इसको, फीचर सेक्शन को? ओके, आशुतोष इज यूजिंग इट, और कोई नहीं कर रहा. बाकी 14 पीपल आर लाइक दे हैव अ टूल. तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है और तुम्हें चलाना नहीं आ रहा है. ओके, सो यूज इट.
फीचर सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट आर्टिकल, कोई आपने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, आपको कुछ अवार्ड मिला है कहीं पे, सपोज मे बी मोदी से मिला है या फिर कहीं पे भी मिला है आपको, उसको आप डाल सकते हो ताकि एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो आपकी, है ना। तो फीचर सेक्शन को हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे यहाँ पे व्हाट आई हैव एक हम मतलब एक 64 इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मतलब मैंने शेयर किए थे यहाँ पे, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो, उस चीज़ को हमने फीचर में रखा हुआ है क्योंकि पोस्ट तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है। आपने इंस्टाग्राम के अंदर भी देखा होगा, वहाँ पे पिन ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप के अंदर भी पिन ऑप्शन आता है, वैसे ही यहाँ पे ये है। फिर यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारी, तो इसका है, इसको हमने डाला हुआ है, उसका लिंक डाला हुआ है। फिर यहाँ पे एक हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था एक कंपनी का, विच इज़ रियली डूइंग वेल फ्रॉम दैट लेवल, जहाँ से हमने बात की ऑलमोस्ट 60-70% अप तक। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड फीचर इन योर प्रोफाइल। सपोज यू हैव बिल्ड अप फाइनेंशियल मॉडल, आपने एक फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड किया है और आपने वो पोस्ट में डाला हुआ है, बट इट इज़ नॉट, जो वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो अपनी एक्चुअल रीच तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फीचर में नहीं डाला हुआ। बहुत कम लोग होंगे जो आपके इसमें जाएंगे, एक्टिविटीज के अंदर जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे। तो जो बेस्ट चीज़ है उसको आप फीचर में रखिए। जो भी आपका बेस्ट पोस्ट है, बेस्ट आर्टिकल है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, उसको आप अपने फीचर में रखिए ताकि इफ समवन इज विजिटिंग यू कैन सी कि ठीक है इसके पास ये है। ओके, व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन पुट, एक पर्सनलाइज वेबसाइट जिसके अंदर आप बता सकते कि हु आई एम एंड हाउ आई कैन हेल्प एंड व्हाट आर माय अचीवमेंट्स। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, आपके पास वेबसाइट नहीं होगी, बट देयर इज अ फ्री टूल विच गिव यू दिस एक्सेस। लिंक ट्री का नाम सुना आपने से किसी ने? लिंक ट्री, सो ऑन दिस वेबसाइट यू कैन पुट ऑन योर वर्क, जो भी चीजें हैं। शायद से मैंने बहुत पहले बनाया था जिस टाइम पे मेरी वो नहीं थी, वेबसाइट नहीं थी। लिंक ट्री डैश समथिंग कुछ था, shoot, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, किसी और का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी और ने ऑलरेडी लिंक्डइन बना रखा, इसका बना रखा, मुझे अपना वाला याद नहीं है अभी, नवजोत जोशी होगा शायद से। तो लिंक ट्री पे आप फ्रीली अपनी एक स्मॉल वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे आप चीज़ों को बता सकते हो क्या क्या चीज़ें आप ऑफर करते हो, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर भी खुलेगा तो हम बताते हैं आपको। जैसे ये है, फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है नवजोत आहूजा, स्ट्रीम फॉर नाइट, जो भी हम आई थिंक गानों से रिलेटेड है इनका। तो इस तरीके से आप लिंक ट्री पे आप अपना बना सकते हो। और आई थिंक मैंने सीवी में डाला हुआ है लिंक ट्री का, आई विल जस्ट चेक दैट थिंग। तो लिंक ट्री आप खोलिए तब तक अपने इसमें, ऐसे डाला हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये है, अच्छा ये लिंक है, सॉरी सॉरी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का जिनको आपको इस्तेमाल करना है, यू हैव टू यूज़ ऑल दीज़ थिंग्स, स्मॉल स्मॉल टूल, और जो भी टूल मैंने आपको बताए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो पेड है, ऑल दीज़ आर फ्री टूल। जैसे ये है यहाँ पे सपोज, अच्छा ठीक है बहुत पुराना वाला है, तो हियर आई हैव मेंशन ऑल दीज़ थिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, वो इंस्टाग्राम अकाउंट का वो है, फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है,
तो आपकी वेबसाइट से क्या यू कैन मेंशन कि आप लोग क्या कर रहे हो, और वहां से भी आप अपने जो मार्केटिंग के लिए ज़्यादा है। तो इट्स अ फ्री टूल, और आप लोगों को जो है मैं ये शेयर कर देता हूँ लिंक ट्री का जो भी है ये। ओके, लिंक ट्री सिंपली आप लोग मेंशन कर सकते हो, उसमें आप बना सकते हो अपना जो भी प्रोफाइल आप बिल्डअप करना चाह रहे हो। तो पर्सनलाइज्ड वेबसाइट वी कैन मेक, एंड देन वी कैन ऐड दैट वेबसाइट टू अवर लिंक्डइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स लीड्स आप तक पहुंचे आपकी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट के थ्रू। ओके ओके, फिर यहाँ पे फीचर के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताइए, आप अपना पोर्टफोलियो बता सकते हो वहाँ पे, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव डन, कौन कौन सी कंपनीज के हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी है मतलब वो करा हुआ है, एनालाइज किया आपने किसी सेक्टर को, मान लो आपने फार्मा सेक्टर को एनालाइज किया या फिर मेटल सेक्टर को एनालाइज किया, तो उसकी आपकी जो भी रिपोर्ट्स है उसको आप मेंशन कर सकते हो। कुछ मीडिया है, कुछ वीडियो है, आपकी वीडियो क्लिप है किसी चीज़ का, सपोज कोई अवार्ड मिला है आपको, उसकी वीडियो क्लिप है, उसको आप डाल सकते हो, है ना, इन चीज़ों को आप डाल सकते हो। देन अबाउट द सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इट शुड बी वेरी कैची। देन आप अपने बारे में बता सकते हो, अपनी अचीवमेंट्स, एक्सपर्टीज कहाँ पे है, फिर सोशल प्रूफ कि आपने क्या रिजल्ट लाए हैं, उन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। तो लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है दैट इज योर सेल्स पेज, एंड आप लोग देखोगे यहाँ पे आप रिकमेंडेशंस भी ले सकते हो, लिंक्डइन के अंदर टेस्टिमोनियल्स भी ऐड ऑन करा सकते हो लोगों के जो एज अ सोशल प्रूफ काम करते हैं। सपोज आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी, तो वहाँ का एचआर है या फिर कोई भी फाउंडर है कुछ है, उनसे आप टेस्टिमोनियल ले सकते हो, रिकमेंडेशन ले सकते हो, जो आपके प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड बिल्ड योर नेटवर्क। अब नेटवर्क के बारे में जितने भी आपके लीडर्स हैं आपके सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी निश को आइडेंटिफाई करो, फाइनेंस मार्केटिंग जो भी है, एंड देन उसके अंदर कौन कौन से लीडर्स हैं उनसे आप कनेक्शन बिल्डअप करो, इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनसे कनेक्शन बिल्डअप करो, उस एरिया के अंदर कौन टॉप क्रिएटर्स हैं, कौन कौन से जो है कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोग कर रहे हैं, तो उनसे आप लोग कर सकते हो, उनसे इवन कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो। तो दिस इज द पावर दैट लिंक्डइन प्रोवाइड यू। तो ये स्मॉल जो चीज़ें जो आप लोगों को करनी चाहिए, प्रोफेशनल हेडशॉट, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड यू हैव सीन दिस की एक्सपीरियंसेस मेंशन करने का भी रहता है आपका लिंक्डइन पे, और हम लोग उसको भी ढंग से मेंशन नहीं करते हैं, अगर आप देखो तो एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपने जॉब करी है, कॉलेज है, उसको थोड़ा डिटेल में मेंशन करना चाहिए। उसके अंदर आपने मेन चीज़ आपने क्या चीज़ सीखा है वहाँ पे, उस चीज़ को मेंशन करो। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ प्रोफाइल की सिंपली लिखा रहता है कि डन वर्क इन दिस दिस दिस, बट व्हाट स्किल यू हैव लर्न देयर। जैसे अगर मैं आप लोगों को अपना दिखाऊं कि यहाँ पे आईआईटी मुंबई में जो थे, तो वहाँ पे क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टूल्स विच वी हैव यूज, तो उस चीज़ को थोड़ा एलोबरेट करो, ताकि अगर कोई प्रोफाइल देख रहा है उसको एक आइडिया मिले कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करी, कौन कौन से टूल्स यूज़ करें, ताकि इफ़ ही रिक्वायर्स यू तो उसको एक आइडिया मिल जाए। फिर आप लोगों ने देखोगे यहाँ पे सर्टिफिकेशन रहता है, इन सब चीज़ों को भी आपको मेंशन करना चाहिए, सर्टिफिकेट है या फिर लाइसेंस है, कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम ही आप लोगों को मिलेंगी, स्मॉल स्मॉल फीचर्स हैं, जैसे कि आपकी डीपी में जो ये रहता है, इफ़ यू आर सीकिंग अ जॉब, तो सिंपली आप लोग भी देख सकते हो कि अगर आप फोटो में जा रहे हो अपने, तो आई कैन ऐड अ फ्रेम ऑन इट, हायरिंग, अगर मैं हायरिंग कर रहा हूँ, या फिर ओपन टू वर्क, तो इस तरीके से आप अपने अपने जो ये फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो अपने उसके लिए, ताकि लोगों को, जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना आपको, जब भी कोई कमेंट करता है तो उसको आपकी डीपी दिखती है, आपका नाम दिखता है और हेडलाइन दिखती है। अगर फोटो में ये लिखा हुआ आ रहा है ओपन टू वर्क, देन दैट पर्सन डायरेक्टली कैन रीच आउट टू यू। तो इस तरीके से ये फ्रेम है, जस्ट अभी भी आया है जस्ट यूज़ करने के लिए, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप जॉब सीख कर रहे हो, तो इंटर्नशिप सीख कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप कर सकते हो वहाँ पे यूज़। अगर आप हायर कर रहे हो तो उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज अ वन थिंग विच यू कैन यूज़, यहाँ से आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग इज ओपन टू वर्क। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन टू, एंड हियर आई हैव मेंशन व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच आई एम इंटरेस्टेड, रियली इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, फिर उसके अंदर ऑप्शंस हैं हाइब्रिड,
जो जो चीज़ें हैं जहाँ पे। एंड बेस्ट थिंग इज दैट इस चीज़ के रिगार्डिंग ना आपको डेली ईमेल्स आएंगे, आपके जो भी ईमेल आईडी से आपका अटैच है। अगर कोई भी इक्विटी एनालिस्ट की जॉब निकल रही है तो उसका जो मैसेज है वो मेरे को आ जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू, अगर आप जैसे इंटर्नशिप, मुझे बहुत सारे लोग पूछा कि इंटर्नशिप के लिए कैसे सर्च करें, तो हियर यू कैन पुट कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब टाइटल्स क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी इंटर्नशिप्स होती हैं, उन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो एंड यू विल डेली गेट अ ईमेल। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना अपने उसमें, तो डेली आता है, मतलब इवन इतने देख भी नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन से जॉब नहीं मिलती है, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट एबल टू यूज दैट टूल इन एन ऑप्टिमल वे। आप लोगों को देखा कि पता नहीं कितने सारे मेल्स आ रहे होंगे, लिंक्डइन जॉब अलर्ट, देख भी नहीं पाते, मतलब सिंपली। ठीक है, मतलब बट इफ यू रियली वांट जॉब, तो आप लोगों को बहुत सारे ईमेल्स मिल जाएंगे यहाँ से, मतलब ऑन अ डेली बेसिस। जो भी लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्ट होगी आप तक पहुंच जाएगी वो। तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ओपन टू, जैसे सपोज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन टू वर्क, मतलब देयर इज समवन जिसको जॉब चाहिए, ओपन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो जैसे मेरा दोनों ही है। अगर किसी को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे है सर्विस पेज। तो यहाँ पे हमने अपना जो फिनशाला है उसका मेंशन किया हुआ है। So there are opportunities, endless opportunities are there, but thing is that we are not that much aware. हमारी awareness ही उतनी नहीं रहती है। Okay, these are the two things: open to work, open to provide services. तो इसमें आप लिख सकते हो कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं जिस चीज़ के लिए आप मतलब जॉब करना चाह रहे हो, ताकि अगर कोई सर्च कर रहा है, कोई टैलेंट एक्विजिशन वाले सर्च कर रहे हैं, तो दे गेट टू नो दैट कि ठीक है आप इस चीज़ के अंदर। सेकंड थिंग, ये बहुत स्मॉल सी चीज़ है कि आपने यहाँ पे देखा होगा, बहुत सारे उसमें आपके उसमें होगा भी नहीं, कि यहाँ पे ये देखो प्रोनाउंसिएशन का है। Myself, Navjot Joshi. I am a trader, trainer, and a तो public इसको speaker. You इस can visit my website, Finshala. ठीक है, ये 10 सेकंड्स का ही आपको बोलने का मिलता है। उसके अंदर आप अपना नाम बता सकते हो, नाम। और थिंग इज दैट हमको केवल नाम नहीं बताना है, हमको उसके साथ साथ और भी अच्छी मार्केटिंग करनी है। तो आप उसमें अंदर मेंशन कर सकते हो कि माय नेम इज, जैसे खुशी का मुझे याद आ रहा है, माय नेम इज खुशी एंड आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग इंटर्नशिप इन फाइनेंस, ऐसे कुछ, ताकि अगर कोई सुन रहा है तो ही कैन गेट टू नो स्मॉल स्मॉल फीचर्स। फिर प्रोफाइल के अंदर आप वीडियो डाल सकते हो, ये और अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रोफाइल फोटो के बजाय वीडियो डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अ पिक्चर शोज अ 1000 वर्ड, तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक वीडियो शोज अ 1000 पिक्चर्स। तो अगर आप वीडियोस को डाल रहे हो तो वो और ज़्यादा एक रिज्यूमे बन जाता है, प्रॉपर आप कह सकते हो अपना। सेकंड, एंड इस चीज़ को अगर आप यूज़ कर सको तो दैट्स रियली वेरी बेनिफिशियल। क्रिएटर मोड, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग क्रिएटर मोड? लिंक्डइन के कितने लोग हैं जो क्रिएटर मोड यूज़ करें? ओके, श्रुति इज यूजिंग। बाकी लोग, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? आई No, थिंक इट्स sir, ऑल्सो that was the previous hand raise. I am not using anymore. ओके 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 ओके। वी आर अबाउट 1 घंटा होने वाला है। आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। Sir, I have a doubt. ओके, यस। So then that, how do we edit about option and what is industry we should add? So as a student, we don't have a lot of skills or lot of certificates. So how can we make our profile a bit attractive? Start doing internships ना। There are a lot of options from where you can do offline internships. बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ऑफलाइन इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराती है ना। यू कैन ऑफलाइन, ऑनलाइन, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। उन लोगों को रीच आउट करो, फ्रॉम देयर यू कैन डू दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिएटर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा माई नेटवर्क, इसके अंदर आपके जितने भी लोग होंगे आपसे जुड़े हुए वो होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज क्रिएटर ऑप्शन। तो क्रिएटर ऑप्शन किन लोगों को मिलता है? कि जो रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। लाइक मी, आई एम रेगुलरली ऑन इंस्टाग्राम, दिस नॉट इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन।
तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, किस टॉपिक्स के अराउंड आप रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने जो करा हुआ है, जैसे सपोज कि लर्न फाइनेंस, कैरियर इन फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो इस तरीके से 5 हैशटैग्स हैं, और इसके अराउंड क्या होता है कि कुछ भी चीज़ होगी तो मेरे को मेंशन जरूर करेंगे ये। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हैशटैग्स आपको दिख रहे होंगे, टॉक अबाउट। आप लोगों में से बहुतों के उसमें नहीं दिख रहा होगा ये, क्योंकि आप लोगों ने क्रिएटर मोड नहीं ऑन किया है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्न फाइनेंस, कैरियर इन फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के अराउंड क्या है, हैशटैग्स हैं, और इनके अराउंड कुछ भी चीज़ आएंगी, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो मुझको जरूर मेंशन होंगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटर ऑप्शन। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्रिएटर ऑप्शन के अंदर मिलती हैं, कि कितने लोगों ने मेरे प्रोफाइल को विजिट किया है। यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा ना आपको एनालिस्ट, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने लोगों ने मेरे प्रोफाइल को विजिट किया है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी, और वो लोग कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मतलब जो भी हैं, और ज़्यादा तो खैर इवन प्रीमियम ऑप्शन के अंदर मिलता है, बट सम कुछ लोगों का आपको दिख जाएगा। टू इंटरेस्टिंग व्यू, उस तरीके से 3 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, कोई कहाँ से है। सो दिस वे यू गेट टू नो। और ये ऑप्शन केवल क्रिएटर ऑप्शन के अंदर ही मिलता है, आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ से आप अपनी विजिबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हो। टूल्स है, जैसा मैंने बताया कि आपका एनालिसिस मिल जाता है आपको, कि आपका कितना ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है, कितने लोगों तक आप पहुँचे हो, रीच आउट कितने लोगों तक हुए हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और इससे फिर ऑब्वियसली बात है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर इन्विटेशन, मोर कनेक्शन, मोर फॉलोअर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड फीचर ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने आपको बता ही दिया है, तो उसको आप जरूर यूज करें, क्रिएटर मोड यूज करें, एंड देन फीचर एक्शन। एंड थर्ड थिंग इज लिंक इन योर बायो। तो यहाँ पे जैसे कि अभी आपको होगा, अब जब भी आप अपना प्रोफाइल खोलोगे, वहां पे एक ऑप्शन रहता है विजिट वेबसाइट। ये ऑप्शन विजिट वेबसाइट या कॉन्टैक्ट इन्फो, ये दो ऑप्शन तभी आएंगे जब आपने अपनी वेबसाइट बना रखी होगी। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, फिर भी इवन वी वांट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, तो आप लिंक ट्री के अंदर अपना एक सिंपल बेसिक पोर्टफोलियो बना सकते हो। कुछ भी चीज़ आपने करी है, छोटी मोटी अचीवमेंट्स, उनको वहाँ पर डालो। कोई इंटरव्यू क्रैक किया, उस चीज़ को मेंशन करो वहाँ पे, सर्टिफिकेट दिखा दो साथ में। तो इस ऑप्शन का भी यूज़ करो। वेबसाइट, जैसे हमने तो खैर अपनी यहाँ पे वेबसाइट डाली हुई है, जो फिनशाला की वेबसाइट है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो है, उनको आप मेंशन करो, कि ताकि अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो उसको इजी पड़े। ईमेल, बहुत सारे लोग ईमेल नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल मेंशन नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम बताएंगे आपको, कैसे आप अपना प्रोफाइल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया लिंक ट्री, इनको आप यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो, बुक लिंक। सपोज यू आर कुछ लोग होंगे आप में से यहाँ से जो सेल्स की प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं जो सेल्स प्रोफाइल के अंदर जाने वाले हैं। सो यू कैन बिल्ड कंसल्टेशन लिंक, गूगल फॉर्म बनाओ सिंपली, उसका लिंक डाल दो आपको, सिंपली आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है वेबसाइट एंड यू डोंट हैव लिंक्डइन, लिंक ट्री का आपने नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो आप सिंपली गूगल फॉर्म को भी डाल सकते हो उसके अंदर, या फिर अपने यूट्यूब को डाल सकते हो। व्हेन ऑप्शन इज देयर, यू कैन यूज इट इन एन एंडलेस वे। एंड लास्ट थिंग इज पर्सनलाइज योर प्रोफाइल यूआरएल। अभी आप लोगों में लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे को किसी ने शेयर किया था अभी, आई थिंक साहिल वाज दैट। तो साहिल, और एक मैं अपना शेयर करता हूँ। जस्ट टेल मी, मतलब किसका ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और किसका ज़्यादा थोड़ा, मतलब इवन तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। यू कैन सी साहिल केस में क्या दिखा रहा है, linkedin.com/in साहिल गुप्ता, सम नंबर्स आर देयर, 8-9 नंबर्स कुछ हैं पीछे। वहीं यहाँ पे आप देखो, फॉर मी इट्स सिंपल नव्य जोशी। तो यू कैन कस्टमाइज योर लिंक्डइन फ्रॉम हियर। टॉप राइट में आपको दिख रहा होगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। अगर आप इसमें क्लिक करोगे, सिंपली आपको जो यूआरएल है वो मिल जाएगा। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने सेट किया हुआ है, और इसको जैसे अगर आपको एडिट करना है तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब ये थोड़ा लोड हो रहा है, तो वहाँ से आप सिंपली अपना नाम है जो भी, मान लो जैसे किसी का श्रुति नाम था, आई थिंक हियर श्रुति गुप्ता, तो यू कैन सिंपली मेंशन linkedin/श्रुति गुप्ता ऐसे, ताकि जनरली व्हेन वी आर शेयरिंग दीज थिंग्स ऑन आवर रिज्यूमे, तो एक लंबा नंबर अच्छा नहीं लगता है।
डजंट लुक वेल, तरीके से आप उसको अपना जो एडिट है उसको करके सिंपली आप शेयर कर सकते हो। ओके, और उसका बेनिफिट है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज दिखता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। शॉर्ट यूआरएल ऑब्वियसली बड़ा सा लिंक बहुत बेकार सा लगता है जब भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो किसी को तो। एंड लास्ट थिंग जो मैंने आप लोगों को बताया कंटेंट क्रिएशन, तो इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब सपोज आप बोलोगे मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बट यू कैन फॉलो सम क्रिएटर ऑन लिंक्डइन जो भी आपको, जिनका भी कंटेंट आपको समझ में आता है, पसंद आता है। आपके पास नहीं है ज्ञान, कोई बात नहीं, बट यू कैन शेयर दियर पोस्ट, उस पोस्ट से आपने क्या सीखा। सपोज जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं, कल आई थिंक को खुशी ने ही शेयर किया था मेरा पोस्ट, है ना, इन्होंने ये शेयर किया था पोस्ट। तो यू कैन इवन शेयर दैट थिंग, उससे क्या होगा, जिसका भी आप शेयर कर रहे हो, फॉर हिम यू आर अ क्रेडिबल पर्सन, और आपकी रीच भी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो आपके प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है, आप कोई पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो वो आप शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। बट इससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू आर शेयरिंग समथिंग, योर प्रोफाइल इज एक्टिव। अगर आप खुद से नहीं कुछ कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो, तो जो ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं उनको फॉलो करो, उन्हें कंटेंट को पढ़ो, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो आपने वहां से सीखा, उसको आप उनके प्रोफाइल के साथ शेयर कर रहे हो, वहां पे उनको मेंशन कर लो। उससे क्या होगा, फॉर दैट पर्सन यू आर अ क्रेडिबल पर्सन, एंड आपका प्रोफाइल एक्टिव है, आपने भी कुछ ना कुछ, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका प्रोफाइल एक्टिव रहेगा। जो एचआरस हैं उनको आपका प्रोफाइल दिखेगा, इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव कि ठीक है ये पर्सन मे बी ही डोंट हैव दैट मच स्किल नाउ, ही इज लर्निंग, बट ही इज इंटरेस्टेड। लर्निंग की जो स्किल है ना, कि मतलब सीखना चाह रहा है, वो चीज शो होती है। सो दैट थिंग यू कैन डू इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। और स्लोली स्लोली वी ऑल हैव सम स्मॉल स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, उसको आप शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस का ही शेयर करना है ना। अपना स्किल का दिखा सकते हो कि मैंने आज ये स्किल सीखी है, या फिर ये अचीवमेंट हुआ है। आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया, उस चीज़ को आप डाल सकते हो, है ना। कोई आपने लीड कन्वर्ट करी है, कोई इंटरव्यू क्रैक किया है, वो इंटरव्यू आपने क्यों क्रैक किया है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे यूजीसी नेट का जो हमारा लास्ट ईयर अभी हुआ था, तो उसका एक मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हाउ आई एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, इवन दो दैट वाज नॉट दैट, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी यू कैन शेयर योर ओन स्टोरी। अपने ब्रांड के अराउंड आप कुछ चीज़ें बोल सकते हो, कोई भी स्मॉल टिप्स ट्रिक्स आपको मिली, उस चीज़ को आप कर सकते हो, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें, इवन दो आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, सीखो, है ना, फॉलो करो लोगों को, उनके उससे जो आप चीज़ सीख रहे हो उनको आप इम्प्लीमेंट करो। एंड लास्ट में कि कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें 3-4 तरीके हैं। एक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हो, ओपन फॉर, यहाँ से आपको जॉब नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अगर आप लोगों को सिंपली दिखाऊँ कि मैंने जिन चीज़ों के लिए अप्लाई किया वो उनकी जॉब जैसे दिखती हैं, तो कुछ चीज़ों में इजीली यू कैन अप्लाई। जैसे यहाँ पे आया हुआ है डेलॉयट के अंदर, तो सिंपली आपको अपना रिज्यूमे रेडी रखना है, हैंडी रखना है, एंड सिंपली अप्लाई। रिस्पॉन्स आते हैं, मतलब इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द 40 जॉब्स, तो आपको 8-10 के अंदर आएगा। मतलब देयर वुड बी अ रिजेक्शन रेट, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल ही अट्रैक्टिव नहीं है और फिर बोलोगे मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलती है, मुझे वो नहीं मिलता है, देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो सिंपली एचआर को आप एचआर के साथ कनेक्ट रहिए, सर्च करो उनको, एचआर को, है ना, उनके साथ कन्वर्सेशन करो। जनरली क्या देखते हैं हम लोग कि हाय, हाउ आर यू, इट्स नॉट फॉर्मल। यहाँ पे टोटली जो भी चीज़ आप कर रहे हो फॉर्मल करो, इनफॉर्मल चीज़ें मत करो। मेक अ प्रॉपर कवर लेटर, वो चीज़ उनको दो, है ना। एक सिंपल बोलते हैं ना, हर किसी को रिस्पेक्ट पसंद रहती है, तो उस तरीके से आप उनको वो चीज़ करो, कवर लेटर बनाओ, एंड देन मैसेज देम, उस चीज़ का यूज़ करो। एंड मेंशन, कवर लेटर के अंदर मेंशन करो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स है, ये इंटर्नशिप का वो है, उस तरीके से आप करो, है ना। ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हो। एचआर को मैसेज, डीएम्स, ईमेल आईडी अगर उनकी है तो ईमेल आईडी वगैरह, वो सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लिखना, वो सब चीज़ें, ग्रामर एरर नहीं करना, वो
एंड सिंपली जैसे आप जो मैंने बताया जॉब सर्च पे से के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे है जैसे ऑप्शन आता है जॉब का, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि मुझे किस चीज़ का चाहिए। सपोज मुझे मार्केटिंग के अंदर कुछ चाहिए, है ना, कौन सी सिटी के अंदर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जितनी भी पोस्ट होंगी सारी आ जाएंगी। यहाँ पे देखो पता नहीं कितने सारी हैं अभी तो। लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स। द थिंग इज दैट वी आर नॉट अवेयर। ओके, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, मोबाइल से भी आप कर सकते हो, सेम चीज मोबाइल का भी है। एंड लेटर ऑन यू कैन इवन फिल्टर योर जॉब्स। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो जॉब्स को। मोस्ट रिसेंट कुछ जॉब्स होंगी जो 3 महीने पहले होंगी पर अभी भी दिखाई दे रही होंगी, वो चीज़। फिर इंटर्नशिप्स के बेसिस पे आप कर सकते हो। इंटर्नशिप एंट्री लेवल है ना। अब आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करो जहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है और आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो, कंपनीज के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर जॉब। 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया, डायरेक्टली जॉब सर्च कर सकते हो। सेकंड चीज ओपन टू वो। एंड थर्ड थिंग इज एचआर को डायरेक्टली मैसेज करना, इज देयर इज एनी अपॉर्चुनिटीज। हम लोग जैसे प्लेसमेंट सेल में है तो यहाँ पे हम लोग या डायरेक्टली कोई भी एचआर मिलता है, वी हैव अ स्मॉल फॉर्मेट, उस चीज़ को हम लिख के भेज देते हैं उनको कि ठीक है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ दिस फैकल्टी, दिस इज इज हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, ये इंटर्नशिप्स हम लोगों ने करी है बच्चों ने, मतलब जो भी है। एंड देन फाइनली इफ़ यू आर ये हाउ कैन वी रीच आउट टू यू, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप भी अपना एक फॉर्मेट बना सकते हो किसी से रीच आउट करने का। एंड जितने भी लोगों से आप कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो, मैसेज करो ना उनको, सिंपली मैसेज देम, जस्ट आस्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनका, व्हाट आर देयर व्यूज, बिल्ड अ कनेक्शन। तभी अगर आप किसी को डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे रेफरेंस दे दो जॉब के लिए, ही विल नॉट गोइंग टू गिव अ रेफरेंस। तो फर्स्ट बिल्ड ट्रस्ट, और ट्रस्ट बिल्डअप करने से पहले अपने एंड से सही रहो, अपने एंड से अपना प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है उसको अच्छे तरीके से रखो। फोटोज, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आज, इन सब चीज़ों को आप मेंशन करो एंड यू विल गेट रिस्पॉन्स। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, मतलब आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, जॉब के लिए, मतलब कुछ हैं, इवन यू विल नॉट बिलीव नहीं होगा, आईआईएम से भी इवन जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मतलब इंशाल्लाह को हायरिंग के लिए बुलाते हैं। सो ये सब चीज़ें कैसे भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। तो जितने भी लोग आपके आपके कनेक्शंस में आ रहे हैं, डू, मतलब उन लोगों से पूछो कैसा एक्सपीरियंस है, व्हाट आर देयर व्यूज। तो हम लोग नहीं पूछते हैं। रिसेंटली एक दिल्ली की कोई थी, अच्छा, दिस इज, ठीक है, आई थिंक so here she asked me, I'm the placement coordinator of Sri Ram College of Commerce 2222. We are seeking for internship opportunities ऐसे and from here like this you can build your connections. So these are the things which is important, और आप लोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे Excel because you don't knows what are the things जो आप लोगों के सामने है। एंड ये चीज़ जो मैं बताने वाला है कंटेंट क्रिएशन के लिए, जैसे सपोज आपने फाइंड कर लिया कि मेरे को फाइनेंस के अंदर ही जॉब करनी है, देन फाइंड योर निश। ऑब्वियसली आप अपने करिकुलम के अंदर कुछ कुछ पढ़ रहे होंगे, एंड व्हाट यू हैव लर्न टुडे यू कैन शेयर दैट थिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी इसी चीज़ से कर रहे हैं, दे आर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, दे हैव अ वेरी गुड रिकमेंडेशंस, दे हैव वेरी गुड टेस्टिमोनियल्स, एक अच्छा खासा प्रोफाइल बिल्डअप है लिंक्डइन के ऊपर। स्टार्ट कैसे किया, दे हैव जस्ट स्टार्टेड लाइक दिस कि व्हाट आई हैव लर्न टुडे। सपोज आप फाइनेंस में हो, आपने आरओई पढ़ा आज, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, उसको अपने शब्दों में बताया एंड धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा, फॉलोअर बेस, यूजर बेस, एंड यू विल इजीली गेट अ जॉब। बहुत आसान है। शेयर योर एक्सपीरियंस, थर्ड पार्टी कंटेंट। सपोज आपके पास नहीं है कंटेंट, मैं डाल रहा हूँ, यू कैन रीड माई कंटेंट एंड फिर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो कि ये चीज़ मुझे पसंद है। जैसे आप लोगों ने आज ये वर्कशॉप करी, तो यू ऑल कैन पुट कि यू कैन मे बी वी विल डू लेटर कि एक स्क्रीनशॉट लिया, दिस इज अ थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस वर्कशॉप। उस चीज़ को जो आपने आज सीखा है उस चीज़ को आप दूसरों को बताओ। तो दिस वे यू विल गेट मोर अट्रैक्शन, है ना।
हम लोग जो मधुमक्खी रहती है वो शहद के पास ही जाती है, तो पहले हमको वो शहद बनना, वी शुड बी दैट वैल्यूएबल बाय अवर सेल्फ। वो कैसे होगा? स्किल डेवलप करो, नॉलेज एक्वायर करो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो और उस चीज़ को दिखाओ दूसरों तक कि आई हैव दिस थिंग। आपके पास स्किल है, सब कुछ है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मार्केट इट, यू विल नॉट गेट जॉब। मतलब इजीली नहीं मिलेगा, मिल सकती है जॉब बाय लक, बट इजीली नहीं मिलेगा। एंड इफ यू वांट दैट कि आपको इजीली मिले, तो उस चीज़ को मार्केट करो एंड स्टैब्लिश एंगेजमेंट रखो। जैसे आप 16 लोग हो आज, है ना? कुछ भी चीज़ आपने किसी ने शेयर की, सेकंड पर्सन जा रहा है कि मैंने ये चीज़ सीखी सेम पोस्ट के अंदर, तो दिस वे यूर पोस्ट विल गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट और वहां से जो भी लोग देख रहे हैं वो भला सभी का होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड फाइनली जो चीज़ है स्मॉल स्मॉल थिंग की ग्रामर सुधारो, बी एक्टिव, है ना, ये सब चीज़ें ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स उसके अंदर रहो। आउटबाउंड लिंक्स मत डालो। जैसे यूट्यूब का लिंक अगर आपने डाल दिया तो लिंक्डइन की एल्गोरिथम कुछ ऐसी है कि वो बाहर के लिंक्स को मतलब उतना प्रमोट नहीं करेगा। और आप फिर स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं, जैसे हैशटैग्स को यूज़ करो। हैशटैग्स से भी अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मतलब मैं इंटेंस को ढूंढता हूँ या फिर मैं भी कोई चीज़ करता हूँ, सिंपली आप यहाँ पे ना, जैसे मुझे करना है, ये हैशटैग्स का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं वैसे। फाइनेंस जॉब, ठीक है, इस हैशटैग्स को यूज़ करोगे ना आप, यू विल सी अ लॉट ऑफ पोस्ट जहाँ पे कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब दे रहे होंगे। तो ये जैसे सपोज दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर जॉब, ही इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब। कुछ लोग होंगे जहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, जहाँ पे कुछ लोगों को जॉब रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पे है, थर्ड पेज पे आपको मिल गया, गुड इवनिंग टू ऑल जॉब सीकर्स, दिस इज दिस। पर जहाँ पे ना, मतलब मैंने ये देखा जहाँ पे ये बोलते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट यस नो, उनको मत करना, वहाँ पे कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर किया होगा वहाँ पे ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो इस तरीके से भी आप हैशटैग के थ्रू यूज़ कर सकते हो। 8-9 हैशटैग्स हैं, उनको यूज़ करो, उनको फॉलो करते रहो। और मे बी यहाँ से आपको एचआर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे जो रेगुलरली पोस्ट करते हैं, या फिर सिंपली आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, फॉलो फाइनेंस जॉब। तो आपको जो भी उस हैशटैग के अराउंड कोई कंटेंट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेज। सो आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी कुछ आज नई चीज़ें सीखी होंगी। एंड आई वुड लाइक टू, क्या आप लोगों का रिव्यू है, इफ यू कैन शेयर। एनीवन? सो आई विल बी शेयरिंग दैट थिंग। इसकी रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी। और उसका प्रोसेस कैसा है वो मैं आप लोगों को जो है ग्रुप के अंदर बता दूंगा। एंड बिफोर दैट आई वुड रियली, और इवन हम लोग ये भी कर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हम आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी कैन शेयर अवर जो भी लिंक्डइन की आईडीज हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से वी कैन गेट इन टच। और आप लोगों को अगर कभी भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंस मतलब नॉट इवन फाइनेंस, मतलब लिंक्डइन के रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क और आई वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड स्मॉल थिंग्स आपकी साइड से अगर इफ़ यू कैन पॉसिबल कि अगर आप हमें इंशाल्लाह पे अगर रिव्यूज़ दे सकें इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग हाउ इट वाज, सो दैट वुड बी ग्रेट फ्रॉम योर एंड। एंड तो मैंने बताया कि लास्ट में कि हम एक स्मॉल स्नैप ले सकते हैं यहाँ पे, देन वी कैन शेयर दैट थिंग ऑन आवर लिंक्डइन प्रोफाइल टुडे। इवन आई विल आल्सो शेयर कि मुझे क्या लगा और किस तरीके से आप, तो आप लोगों में स्मॉल लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें अपने जो भी रिव्यू है इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग। एंड इन फ्यूचर दिस ईयर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी वर्कशॉप इन फ्यूचर होने वाली है। तो जो हमारा मेन ग्रुप है इंशाल्लाह अपडेट्स, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ से ज्वाइन भी हुए होंगे। एंड फ्रॉम देयर इन फ्यूचर वी हैव समथिंग इन पाइपलाइन, लाइक कि आप इंटरव्यू की स्किल्स कौन सी है, रिज्यूमे को कैसे और बेहतर बना सकते हो, है ना, सीवीज को, कवर लेटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ईमेल्स हम भेजते हैं बट वी डोंट पुट आवर कवर लेटर, तो वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे भेज दिया, सेम चीज़ मैं आपको ग्रुप के अंदर ही भेज रहा हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप अपना रिव्यू दे सकते हो एंड इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो एंड फॉर मी आल्सो कि अगर आप वो रिव्यूज वीडियोस ही फॉर्म में, इफ नॉट, बिकॉज वीडियोस आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। मैंने बताया ना कि अगर आप किसी का नाम सुन रहे हो तो आपको उतना ट्रस्ट नहीं होगा, किसी की फोटो देख रहे हो थोड़ा और ट्रस्ट होगा, बट इफ यू आर सीइंग समवन्स वीडियो तो यू विल बी मोर क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड अगर आप इन पर्सन मिल रहे हो तो और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है। तो सेम चीज बहुत, इसीलिए आप लोगों ने देखा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो क्या करते हैं, दे कीप मीटअप्स रखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर। क्यों? इन पर्सन आपका जो ट्रस्ट है वो मोर डेवलप होता है और आपको जो मतलब फेवर मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा व्हेन यू आर इन पर्सन, किसी को जानते हो। कोई मुझे केवल वॉइस से जानता है, देन फॉर मी आई नो हिम फॉर ओनली 2 or 3 minutes। किसी को वीडियो के थ्रू मिला है तो 15-20 मिनट के लिए हम जानते हैं, बट अगर आप किसी को पर्सनली जान रहे हो, 1-2 घंटा स्पेंड किया है, तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग रहती है एज कम्पेयर टू सिंपली एक स्मॉल। तो इसलिए कोशिश करिए आप लोग, जैसे मैं आई ऑलवेज प्रमोट की फर्स्ट डिसाइड इन विच साइड और इन विच निश यू वांट टू गो। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीजें जैसे इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेडिंग है। तो उनमें से किसी चीज पे आप काम करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करो। उसके अराउंड जो भी लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर उसके अंदर हैं या फिर जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको फॉलो करो। वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं उस चीज को देखो एंड देन उनसे आप क्या चीज सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोग जरूर सीख रहे होंगे। तो उस चीज को आप अपने लिंक्डइन पे तो एटलीस्ट डालो, और जगह नहीं डाल सकते, मे बी यू आर शाय, व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट लिंक्डइन पे डालो ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो एक्टिव रहे, वो आपको जो वैल्यू है वो मिले। तो मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल ताकि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें। एंड मैंने यहाँ पे जो रिव्यूज के लिए है वो आपको लिंक शेयर किया हुआ है, एंड दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड एंड वांट टू वर्क विद अस इन फिनशाला एज एन इंटर्न, दे आर मोस्टली वेलकम। तो उस चीज के लिए आप यू कैन पर्सनली डीएम मी और टू आशुतोष। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल जस्ट टेक अ स्मॉल स्नैप। इस टाइम पे तो आप लोग थोड़ा कैमरा ऑन कर सकते हो प्लीज, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। Sir, Yes, and if you have any question you can sir, ask. सर फ्रेशर्स का रिज्यूमे मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप शो कर सकते हो? मैं शो कैसे करूं, but what are the things that I would really like to see is that, मतलब होता है ना सीखने की भूख, आपके शब्दों से वो चीज दिखनी चाहिए। तो उस चीज को आप कोशिश करो कि एक बार मैं थोड़ा इसको स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद कर दूं ताकि जितने भी लोग हैं सबके सब स्क्रीन पर जाए। ओके, तो फ्रेशर्स का रिज्यूमे मैंने बोला ना, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमने बताया कि हमारे पे भी यहाँ पे अगर आप इंशाल्लाह करना चाह रहे हो तो आप मार्केटिंग के लिए आ सकते हो यहाँ पे, और कंटेंट क्रिएशन के लिए आ सकते हो, तो वहां से आप लोग वो कर सकते हो। फ्रॉम देयर यू कैन मेक योर सीवी। सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस है तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हो, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, जैसे ये वर्कशॉप है इसको आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस वे यू बिल्ड अप, है ना। और बाकी लोग प्लीज turn on your cameras please. I will just make a small video ताकि लगे, और मतलब जिन लोगों ने मिस किया उनको लगना चाहिए ना they have missed something and you have gained something. Okay, and you can even take a screenshot and then we will you can put what you have learned today. Okay, कहीं कहीं पे एक ही जगह से 3-3 4 लोग भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, that's really good, nice. So today we have completed this workshop on LinkedIn, how you can use LinkedIn for your personal and professional growth. And those who have missed, they can watch the YouTube video. And thank you all for joining and giving your almost 1.5 hour here. I think it would be not boring. So सीखा होगा आप लोगों ने. Okay, thank you all. And you can put जो भी आपकी मर्जी हो. If you have any doubt, you can contact me or even Ashutosh. Okay, thank you. And I will share the link of Finshala updates so that in future we are going to do this series of career conference. कुछ idea आया नया. So here we will be sharing how you can excel your career. और कुछ लोग कब join कर रहे हैं. Wow.
Okay, thank you all. We will meet next Sunday if you are interested.